हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बहुत खुशीर कथा है जो पिला माने क्लास करनो आसोनी हम पाक डाउट बुझते नेक्स्ट टाइम क्या आम डेली प्रेजेंट पकोजे है। तो प्रीवियस क्लास रे आम पढ़ते दैट इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्लियर। तो आज आम पढ़ा वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विथ चेंज इन हाइट, depth and latitude with the shape and size of the planet. Clear? So before discussing about the variation of small g, at first I am going to explain what is acceleration due to gravity and it depends on what factor. Okay? तो आज आम टॉपिक स्टार्टिंग टॉपिक नाम है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Acceleration due to gravity. What do you mean by acceleration due to gravity? तो लिखी दियो, it is the acceleration produced in a body due to presence of gravity. लिखी दो जी, it is the acceleration produced in a body due to presence of gravity. Due to presence of gravity. Okay. तो धरा जाऊ मोडे प्लानेट ने ली, लेट दिस वन इज द प्लानेट। प्लानेट रा मास केते अछि ना प्लानेट रा मास हला m। यही जगह गोटे बॉडी को रखीचे, से बॉडी को आम से प्लानेट रा सरफेस रखीचे। बॉडी रा मास केते अछि स्मॉल m। बॉडी रा सेंटर अर्थ रा सेंटर भितर डिस्टेंस केते अछि ना दैट इज इक्वल टू r। तो यही केस में कोई परिवा r इज द रेडियस ऑफ द प्लानेट। ओके, कैन से सरफेस रहउजी ना। ओके तो यार मास अच्छी तो यहाँ मास थिबा भितरे किसी सेपरेशन अच्छी ताले यहाँ भितरे को प्रकार फोर्स देखा जीवो ना दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला केते हो ना Fg इक्वल टू G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई केते लिखिवा r स्क्वायर। सो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी इन बिटवीन द प्लानेट एंड द बॉडी। ओके, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द वेट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी जो वेटा ये बॉडी वेटा जो तौक जाऊँगी बॉडी वेटा कौड़ को डाउनवर्ड डायरेक्शन रे ये बॉडी वेटा किए प्रोवाइड कर भीतर थी ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वी कैन राइट द वेट प्रोवाइड बाय द बॉडी दैट इज W इज नथिंग बट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। W इज इक्वल टू Fg। So weight means this is the weight of that body which one is placed on the surface of the planet. So what is the weight of the body? That is equal to mass into acceleration due to gravity. And what is the formula for gravitational force? Now G into capital M into small m divided by r square. Small m cancel out. So the remaining term will be small g equal to G capital M by r square. Okay. So here your acceleration due to gravity depends on mass of the planet as well as the radius of the planet. So from this situation or from this scenario, just you observe here, r is the radius of the planet, m is the mass of the planet. So we can say acceleration due to gravity depends on mass of the plane and also depends on radius of the planet. Or we can say your acceleration due to gravity depends on shape and size of the planet. Depends on shape and size of the planet. Okay. So just give a important point. The value of small g depends on
shape and size of the planet. Okay. So as the shape and size of the planet are different for different planet, yes or no? So we can say the value of small g not same for all the planet. କାହିଁକିନା ସବୁ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ୍ ସେମ୍ ନୁହଁ ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ମଲ୍ ଜିର ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁ ପ୍ଲାନେଟ୍ ପାଇଁ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସ୍ମଲ୍ ଜିର ଭ୍ୟାଲୁ ୟୁନିଭର୍ସର ସବୁ ଜାଗାରେ ତା'ର ଭ୍ୟାଲୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ମଲ୍ ଜିକୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକାରରେ କନସିଡର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସ୍ମଲ୍ ଜି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ବଟ୍ ୟର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଜି ଇଜ୍ ଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁ remains same everywhere in the universe। तो जेहेतु तुमर कैपिटल जी भैल्यू यूनिवर्स सबुआड़े तार भैल्यूटा सामान थाए से यूनिवर्सल कन्स्टांट कहवा। जेहेतु या स्मॉल जी भैल्यू यूनिवर्स सबु प्लानेट डिफरेंट डिफरेंट थाए तो या आम यूनिवर्सल कन्स्टांट कहीपर ना। बुझे लगे ना? एवं पिला माने मन रखी था ये आरटा कौन ना आर यही केस रेडियस आरटा यही केस कौन रोचे रेडियस कि जो गोटे प्लानेटा को मुझे किसी हाइट उपर रखी से केस रे आमे जो डिस्टेंसटा नवा एडू नवा ताने मोर कहबार माने ये कि जे ये आरटा है डिस्टेंस इन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लानेट और वी कैन से आर इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लानेट। ताने कौन आपको आम जापर आर ऊपर भल से बुझीपर बुझे लगे नहीं। तो बर्तमान देखा स्मॉल जी को फैक्टर ऊपर डिपेंड करुँ। तो फैक्टर डिपेंड्स ऑन स्मॉल जी आर द वैल्यू ऑफ small g depends on following factors. One way, shape and size of the planet, variation of height जोटा कहते तुम अल्टीट्यूड थर्ड रे वेरिएशन ऑफ डेप्थ फोर्थ रे वेरिएशन ऑफ लैटिट्यूड। ओके तो ये चार्टा फैक्टर उपरे तुम स्मॉल जी वैल्यू डिपेंड करे। बुझे लगे नहीं? शेप एंड साइज ऑफ द प्लानेट तो केमती है कौन है जापर ये केस रे जे स्मॉल जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द प्लानेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट प्लानेट। ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू द डिस्कस अबाउट द वेरिएशन ऑफ हाइट। सो इफ the height of the body changes from the surface of the earth, how the value of small g changes? Clear? So now come to the second point, variation of height. Okay, let this one is the planet whose mass is m, radius of the planet is equal to r. When a body is placed on the surface of the earth, the value of small g equal to gm by r square. Okay, so when the body is placed on the surface of the earth,
the value of small g equal to gm divided by बर्तमान डिस्टेंस में देखो प्लानेटर सेंटर रो ए बॉडी को डिस्टेंस केते होची को ना डिस्टेंस इक्वल टू r तो gm by केते r स्क्वायर टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 जेतले ए बॉडी को मो r सरफेस रो h हाइट ऊपर को नेमी if you taken that body from the surface of the earth at a height of h तो यही पॉइंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहता है वो जी डैश यस है ना चले द वैल्यू ऑफ जी डैश इज इक्वल टू यू कैन राइट जी एम डिवाइड बाय आर सरफेस केते हाइट ऊपर अच्छी एच हाइट लेकिन बेटा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ केते हाइट ऊपर अच्छी आर प्लस एच जहाँ भी हमें डिस्टेंस नवा से डिस्टेंसटा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लानेट नवा तो ये एस वाला सरफेस ऑफ द अर्थ लेकिन प्लानेट रू केते होची ना आर प्लस एच तो हमें लिखवा दैट इज इक्वल टू आर प्लस एच रो होल स्क्वायर तो एबे तुम बुझी पारतो मु जो आर टा कहउथली दैट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन द बॉडी एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लानेट तो जी डैश बाय जी इक्वल टू मु केते लिख परिमी को ना दैट इज इक्वल टू जी डैश बाय जी इक्वल टू आर स्क्वायर by r plus h whole square. Gm will be cancel out. So that is a very important formula to find the value of small g at a height from the surface of the earth. Okay. So this equation also we can modify like r square divided by if you take in common r 1 plus h by r whole square. Yes or no? If you multiply here r into 1 into 1, r into 1 r plus r into h by r that is equal to h. Or we can write that is equal to r square divided by r square into 1 plus h by r whole square. R square cancel out. So that implies g dash by g equal to 1 plus h by r whole to the power minus 2. So g dash by g is equal to 1 plus h by r whole to the power minus 2. Okay. Now there is a consideration. What consideration? Now consideration is if height of the body is very small as compared to the radius of the planet. A body आर सरफेस जतिक हाइट ऊपर को आम नौजे से हाइटा बहुत सान हो एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द प्लानेट ताले कौन हम देखा इफ एच इज मच मच लेस देन द रेडियस ऑफ द प्लानेट देन अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपांशन और बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करुचे मैथमेटिक्स रे अछि बाइनोमियल थ्योरम. Then according to your binomial theorem, we can write g dash by g equal to 1 plus h by r से तो -2 टा मल्टीप्लाई हो जो तो -2 into h by r मल्टीप्लाई हम ता माने न कोन एटा सीरीज अछि गोटे सीरीज है कौन कहल h by r h रो वैल्यू बहुत सान भैल्यू बाई बड़ भैल्यू नेग्लिजिबल हो ना बुझीगला कि नहीं तो ताको आम गोटे सीरीज पका जो टेलर सीरीज अच्छी से सीरीज पकड़ा तुम हायर ऑर्डरटा को आम कैंसल आउट करे बुझीगला कि नहीं से खाली जस्ट फास्ट ऑर्डरटा आम रही थाए तो से 1 प्लस खाली ट्रिक्सटा मन रखि -2 टा h by r सहित मल्टीप्लाई हो तो 1 प्लस -2 into h by r सो g dash by g is equal to 1 minus 2h by r or we can write g dash equal to g into 1 minus 2h by r. यही फॉर्मूला में केते अप्लाई करवा when height of the body from the surface of the planet should be less than equal to 5% of radius of the planet. बुझेला कि नहीं हाइटा रेडियस ऑफ प्लानेट 5% बा 5% कम थे आम यही फॉर्म डायरेक्ट पकई पार
जदि सेमती किसी नथिबो आम डायरेक्ट फॉर्मूला एटा पकेबा एटा जनरल फॉर्मूला एटा आम सब जगह पकई परिबा एटा खाली सम केस रे 5% रेडियस ऑफ द प्लैनेट आर जो हाइट यदि कम थिबो त सही केस रे आम एई फॉर्मूला पकेबा GS इक्वल G * 1 - 2h/r। लेकिन बेटा मु तुम को कहबी एई इक्वेशन टा सब मन रखा चाहिए GS / G = r² / r + h रो होल स्क्वायर बुझेगा कि नहीं। तो क्वेश्चन केमती कौन आसे देख लिखिली और लिखि दियो यदि कंप्लीट ताले जदि कंप्लीटेड ताले हाथ रख ओके। तो क्वेश्चन केमती कौन था देख क्वेश्चन at what height from the earth surface the value of small g is decreased by 36% of its value on the earth surface. Given the radius of the earth 6,400 kilometer, 6,400 किलोमीटर है। तो ये आर रेडियस ऑफ द प्लैनेट ये बॉडी रो मास m सरफेस थिला बेले स्मॉल जीरो वैल्यू g केते हाइट ऊपर को गला परे तार स्मॉल जीरो वैल्यू केते परसेंट डिक्रीज कर डिक्रीज्ड बाय 36%, डिक्रीज टू 36%, डिक्रीज्ड बाय 36%। धरा जो आर सरफेस थिला बेले ता वैल्यू केते थिला 100%, केते हाइट ऊपर गले 36% कमी जीवो बाय 36% कमी जीवो। तो 100% 36% गले केते परसेंट रहिला 64%। जे था डिक्रीज टू 36% तले में 36% लिखता डिक्रीज टू 36% थिले इले में 36% लिखता डिक्रीज्ड बाय 36% माने 100% 36% कमी गला तो रहिला केते परसेंट 64%। तो G = Gm/r²। आठ हम कही डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट जेते हाइट आर सरफेस बॉडी बॉडी जीव स्मॉल जीरो वैल्यू कमी कमी जीव से ऊपर गला को से डिक्रीज कला बुझेगा कि नहीं। तो केमती हाइट फाइंड करिया तो जनरल फॉर्मूला पकाओ GS / G = फॉर्मूला केम पकेबा r² / r + h रो होल स्क्वायर। तो GS रो वैल्यू कहते हैं 64, G रो वैल्यू कहते हैं 100 is equal to r² / r + h रो होल स्क्वायर। स्क्वायर take root over on both side 8/10 equal to r / r + h, so that is equal to 8r plus 8h equal to 10r, so 8h equal to 2r, तो h equal to r/4, तो 6,400/4 radius of the planet given ना, तो that is equal to 1600 kilometer, h equal to 1600 kilometer। ताले आर्थ सरफेस रो
से बॉडी को 1600 किलोमीटर ऊपर को नेले तुम स्मॉल जीरो वैल्यू केते परसेंट डिक्रीज करी होजी ना 36% डिक्रीज कर बुझे लगे नहीं। तो ये छोटे इंटरेस्टिंग कथा देख 1600 किलोमीटर उपरे स्मॉल जीरो वैल्यूटा तुम केते परसेंट डिक्रीज कर ना 36% डिक्रीज कर तो 60% वैल्यू एक्जिस्ट कर जिते तल को धीरे धीरे आसो स्मॉल जीरो वैल्यू बढ़ी बढ़ी जीव एक्सेलरेशनटा बढ़ी बढ़ी जीव ताମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ମୋସନ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ୟୁ ଟି ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଟି ସ୍କୋୟାର ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା'ର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବଡି ସୁଡ୍ ମୁଭ୍ ଏଲଙ୍ଗ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ୱିଥ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ ମୁଭ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମୋସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ତ ମୋସନ୍ କରୁଛି नो ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିନ୍ତୁ ସ୍ମଲ୍ ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କି ବା ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି कि ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ कन्स्टांट रोनी। तो वर्टिकल मोशन केस रे आम वन डायमेंशनल मोशन इक्वेशन अप्लाई करें ना बुझे लगे ना गोटे बॉडी को जब 1600 किलोमीटर हाइट रू मुझे ड्रॉप करे तो से केते वेलोसिटी तले बढ़ेब तार वेलोसिटी को फाइंड करने आम वन डायमेंशनल मोशन इक्वेशन अप्लाई करें ना कहीं अप्लाई करें ना बिकॉज एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। इफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट देन वी कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला। एज एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट सो फॉर दैट रीजन वी कांट अप्लाई दैट फॉर्मूला। Yes or no? So now the question will be tick in your mind that so how can you find the velocity of the body if that body dropped at a height of 1600 km from the surface of the earth? This 1600 km height ऊपर से बॉडी को ड्रॉप करिवा तो केते वेलोसिटी तळे आसी बढ़ेबो तो से केमती हमें फाइंड करिवा ना इट कैन बी फाइंड बाय द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एज यू नो फ्रॉम द वर्क फॉर एनर्जी चैप्टर। yes or no? तो सही केस से बॉडीर वेलोसिटी को आम कैलकुलेशन कर बाय द हेल्प ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। बुझे लगे नहीं दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर? सो राइट डाउन completed? Okay. Now come to the variation of depth. Let this one is the planet whose mass is m. This one is the body which one is placed on the earth's surface at a distance of r from the center of the earth. Okay. In this situation the value of small g equal to g. बजन यही बॉडी को मु डी डेप्थ तल को आनिली केते डेप्थ तल को आनिली डी डेप्थ तल को आनिली ओके। तो बर्तमान यही जगह बॉडीटा अच्छी
क्लियर। तो या आर हाइट रे थिला बर्तमान डी डेप्थ आसला को केते हाइट रो अछि सेंटर रो आर माइनस डी एवं एई जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केते अछि जी डैश। बॉडी थिला ई पोजीशन रे सेंटर रो आर हाइट ऊपर डी डेप्थ तल को आनिली तो सेंटर केते ऊपर रहला आर माइनस डी। आर हाइट रे वैल्यू ऑफ स्मॉल जी हला जी, आर माइनस डी हाइट रे स्मॉल जी रो वैल्यू जी डैश हला। बुझिला कि नहीं। तो बर्तमान यही केस रे जते यही जगह रे थिला तो आर रेडियस रो गोटे प्लानेटा को आम कनसीडर करूचे जो यही जगह रहिला से आम आर माइनस डी रेडियस रो प्लानेटा को कनसीडर करवा। बुझेगा कि नहीं। आर हाइट थिला बेले आर रेडियस रो प्लानेटा को मु कनसीडर कली जो डी डेप्थ तल को आसला तो सेंटर आर माइनस डी ऊपर रहिला तो केते रेडियस को मु कनसीडर करमी आर माइनस डी रेडियस रो प्लानेटा को मु कनसीडर करमी। तो आर रेडियस रो मास जा होबो आर माइनस डी रेडियस रो प्लानेट रो मास या होबो कि मास या केबे भी होबो नहीं किंतु तो डेंसिटी कौन रहिबो सेम। मटेरियल तो चेंज होबो ना, मटेरियल जा थिला सिया ही रहिबो। एल लेंथ रे जो मटेरियल अछि एल बाय 2 लेंथ रे मटेरियल से ही अछि ना, मटेरियल चेंज होबो तो डेंसिटी डिपेंड करे का पर मटेरियल ऊपर। ताले G इक्वल टू फॉर्मूला कोन ना, G इक्वल टू फॉर्मूला हला gm by r square। so that implies small g equal to g by r square in place of mass। मास जगह में डेंसिटी इन वॉल्यूम लिख पारिमी कारण डेंसिटी रो फॉर्मूला हला मास पर वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। so that implies g is equal to g by r square into density वॉल्यूम। आर रेडियस आर्थ रा को प्रकार शेप देखिया पाई सॉलिड स्फीयर तो सॉलिड स्फीयर वॉल्यूम रो फॉर्मूला कौन होबो आर रेडियस रो 4/3 पाई आर क्यूब। सिमिलरली बर्तमान मते को सिमिलरली हो बर्तमान कैंसिल आउट कर दियो, कैंसिल आउट कर देला कौन हो को ना g इक्वल टू 4/3 g पाई r इंटू रो, स्मॉल g इक्वल टू 4/3 g पाई r इंटू रो। एटा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली g डैश इक्वल टू मु कौन लिख पारिमी 4/3 g पाई बर्तमान केता हाइट ऊपर अछि r माइनस d तो r माइनस d इंटू रो। टेक इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 तो g डैश बाई g इक्वल टू r माइनस d बाई r। so r by r equal to 1 minus d by r। so g dash is equal to 1 minus d by r into small g। g dash equal to 1 minus d by r into small g। okay। at center of the earth सेंटर ऑफ द अर्थ माने से केते डेप्थ तल को पळे आसे बॉडीटा एई बॉडीटा पर सेंटर को पळे आसीबो तो केते डेप्थ तल को आसिला आर डेप्थ तल को आसीबो ना तले जी डैश रो वैल्यू केते होबो ना डी जगह आर पकेले आर बाय आर हला 1 1 - 1 हला 0 छ जी डैश रो वैल्यू 0 तले वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ केते होबो m * g डैश इज इक्वल टू 0 तो बॉडी रो वेटटा अर्थ रो सेंटर केते हेबे सबले 0 होबो। गोटे बॉडी रो वेट सब प्लानेट रो सेंटर केते होबो 0 होबो कारण से जर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हला 0। बुझे लगे नहीं कहीं 0 तार कॉन्सेप्चुअल अच्छी भी कॉन्सेप्ट कौन अच्छी ना तुम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रो वैल्यू दैट इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से पॉइंट रे कैंसिल आउट हो जाए। देखिए आकु जा से मुंडे पोसाउनी तो वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ केते 0 तार गोटे बॉडीर मास है 5 kg ताको मु रखी थी अर्थ सरफेस रे से बॉडीटा को जतले मु नै जिमे अर्थ सेंटर को तार मास केते होबो आउ थरे गोटे बॉडीर मास है 5 kg
अर्थ सरफेस रे थिला से बॉडी को जदि मु अर्थ सेंटर को नहीं जिमी तार मास केते हबो तो बहुत पिला भावुए 0 कि भूल मास के चेंज होनी वेट चेंज हो मास 5 kg रही मास चेंज होनी वेट इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास चेंज होनी चेंज किए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो से वेट 0 हो कि मास चेंज हम ना बुझेगा कि नहीं ओके तो वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 0 तो अर्थ सरफेस रे केते थिला स्मॉल g सेंटर रे केते हला 0 तमन जते तळ को धीरे धीरे आसीबा स्मॉल 0 वैल्यू कमी कमी जाउची जते ऊपर को भी जीवा स्मॉल 0 वैल्यू भी कमी कमी जाउची तले मैक्सिमम टा कोड रहबो अर्थ सरफेस मैक्सिमम कोड रहबो अर्थ सरफेस रे ऊपर को गले 0 g डिपेंड कर डिस्टेंस ऊपर r स्क्वायर अनुसार किंतु तळ को आसले r सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तळ को आसले हाइट कमी 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 सेंटर 0 होउची तो r कमिले g कमिला ऊपर गले कोन होउची r बड़ी बड़ी जाउची 0 वैल्यू कमी कमी जाउची बुझले नहीं ताले सरफेस ऊपर गले भी g वैल्यू कमुची सरफेस तळ को हेले भी 0 वैल्यू कमुची तो मैक्सिमम कोडी हबो ना मैक्सिमम हबो दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट बुझले कि नहीं तो ड्रा करो कंप्यूटर हाथ रखियो ओके तो जदि ग्राफ ड्रॉ करवा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लैनेट ये स्मॉल g ये 0 ये r मीन्स r रेडियस सरफेस ऑफ द प्लैनेट तो मैक्सिमम मु कोडी कहली सरफेस मैक्सिमम ना सेंटर के 0 तो सेंटर जते ऊपर को जीवा अर्थ सेंटर जते में ऊपर को जीवा 0 वैल्यू बढ़िबो r सहित डायरेक्टली ऊपर गले 0 वैल्यू कमिबो r स्क्वायर सहित इनवर्सली तो सेंटर ऊपर को जीवा अप टू r सरफेस पर्यंत तो 0 वैल्यू इंक्रीज कला लिनियरली g प्रोपोर्शनल टू r तो मैक्सिमम कोडी आला सरफेस रे तापर सरफेस जो ऊपर को जीवा पुणी 0 वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज करिवो किंतु r स्क्वायर सहित इनवर्सली एटा स्मॉल r नहीं जाओ r स्क्वायर सहित इनवर्सली r स्क्वायर सहित कना इनवर्सली तो मैक्सिमम कोडी हबो ना मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मैक्सिमम कोडी हबो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ completed okay now the last topic is here for today class the variation of small g with change in depth no depth completed sorry with latitude
वेरिएशन विथ लैटिट्यूड, वेरिएशन विथ लैटिट्यूड है। Let this one is the planet whose mass is m. This one is the 2 diameter. Okay. This one is the radius. तो अर्थ है सॉलिड स्फीयर गोटे ग्लोब कथा चिंता कर, ग्लोब तो आम बुलाऊे तो यही जगह जो पार्टिकलटा थी सी एतिक सर्कलटा कवर कर जो ऊपर को जीवा से पार्टिकलटा गोटे कम सर्कल कवर कर आउ टे ऊपर को जीवा आहरी कम सर्कल कवर कर पूरा पोल को पलैवा से पूरा मझे ही रेस्ट थी ग्लोबटा को बुलाऊ है। ताले यही जगह जो पार्टिकलटा थी से एमती के सर्कुलर पाथ रे कवर करथुव ना, बड़ रेडियस से कवर करथुव। यही जगह जो पार्टिकलटा थी से कम सर्कुलर पाथ कवर करथुव। तो यही जगह जो पार्टिकल अच्छी तार रेडियसटा जहाँ रहिबो यही जगह पार्टिकल तार रेडियस कौन शेयर रहिबो कि यही जगह रेडियस आर रहिबो किंतु यही जगह रेडियसटा से आर रहिबो नहीं। एडी केते रहिबो स्मॉल आर, केते रहिबो स्मॉल आर। ए एंगल केते नेली मु थीटा, तो ए एंगल मु केते नेली थीटा। एडा को रीजन रे, एडा इक्वेटर रीजन रे, एडा को रीजन रे पोल रीजन रे है। यही जगह जो बॉडीटा थी से बॉडीर वेटटा कोआड़ को थी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ mg एवं यही पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के यही पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ना अर्थ आम आम गोटे पार्टिकल गोटे बॉडी आम क्या सरफेस अच्छे अर्थ सरफेस अच्छे अर्थ बर्तमान रोटेट करुच्ची मोशन लो अच्छे आम रेफरेंस मोशन लो अच्छी तो ये आम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कही पारिबा। जे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था इधर को फोर्स आसियो मार्केट रे स्यूडो फोर्स कही मो क्लास रे को फोर्स आसियो स्यूडो फोर्स। ताले जेहेतु ये पर्टिकुलर रेफरेंस टा तुम अर्थ जेहेतु एक्सेलरेट करुची ताहले या पे को फोर्स अप्लाई होबो स्यूडो फोर्स। सर्कुलर पाथ रे बुलिबा पई हेले सेंट्रीपिटल फोर्स टा कोआड होवा दरकार टुवर्ड्स द सेंटर एई पड़े होवा दरकार कने एई सर्कल सेंटर एइडा होबो तो यही पर्टिकुलर सेंट्रीपिटल फोर्सटा ए आड़ को हवा दरकार। जेहेतु स्यूडो फोर्स अप्लाई होबो तो सही फोर्सटा कौन होबो सेंटर दूरे जीवो एवं सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला कौन m ओमेगा स्क्वायर r आट है रेडियस ऑफ दिस सर्कल। बुझे लगी नहीं तो ये को मैं एक्सटेंड कर ली ये थीटा मान ये केता थीटा रिजोल्यूशन कले ये केता को m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। ताले यही पर्टिकुलर पूरा दीटा फोर्स अप्लाई हो गोटे फोर्स है वेट टुवर्ड्स द सेंटर आउ गोटे फोर्स है m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा अवे फ्रॉम द सेंटर। बुझीगला कि नहीं जदि ये अधिका हम ताले पार्टिकलटा सरफेस बाहर को पड़ेब आम बाहरी जावा जेहेतु वेटटा अधिका अच्छी तो आम बाहरी पारू ना से मुझे टाणी धरी कहीं टाणी धरी ना mg भैल्यूटा या ठारू अधिका अच्छी। तो देखिए बॉडीर नेट वेट केते बॉडीर नेट वेट केते डब्ल्यू नेट वेट नेट केता हम ना दैट इज इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। तो वेट डिपेंड करे कहाँ पर मास तो सेम रहिबो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर तो mg डैश बा g नेट इज इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर केते देखिवा एंगल केते डिग्री अछि छुआ 90 डिग्री ये हला बेस ये थीटा ये 90 तो ये हला बेस ये हला तुम्हारा हाइपोटेनियस बेस हाइपोटेनियस थिले फॉर्मूला कोन हो cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R तो स्मॉल r इक्वल टू मु केते लिख परमी r cos थीटा तो स्मॉल जगह मु लिखमी r cos थीटा इनटू cos थीटा। सो m कैंसिल आउट तो g नेट इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा
G naught equal to G minus omega square R cos square theta. थीटा रे वैल्यू इक्वेटर केते डिग्री हबो 0 डिग्री कन ए थीटाटा बर्तन एटी पळे आसे केते डिग्री 0 डिग्री ए थीटाटा एमती करे पोल को केते हबो 90 डिग्री ताले इक्वेटर रे ना आगे पोल रे G cos 90 केते 0 ते पोल रे केते हला को स्मॉल g तार वैल्यू हला 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वेटर रे G माइनस ओमेगा स्क्वायर R cos 0 हला 1 स्क्वायर 1 तार G इक्वेटर हला केते G माइनस ओमेगा स्क्वायर R बाइडा को हमें एमती लिखि परिबा G at equator is equal to G मानेटा कोडी अछि को पोल माइनस ओमेगा स्क्वायर R तो G पोल माइनस G इक्वेटर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R बुझियल नहीं पोल माइनस इक्वेटर केते आसिला ओमेगा स्क्वायर R तले एथरा जानि पले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल रे अधिका h कंपेयर टू इक्वेटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू पोल रे अधिका h कंपेयर टू इक्वेटर ता माने अर्थ रे भी सब जगह रे स्मॉल g रे वैल्यू समान नो पोल हेला मैक्सिमम इक्वेटर रे तारे रु कम बुझेला कि नहीं तो पोल रे तुमर हला 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वेटर रे तुमर स्मॉल g रो वैल्यू वाला 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें कैलकुलेशन प्रॉब्लम कला बळे कंसीडर कर जो 9.8 सेरा को रीजन ले होतबो सेरा पोल रीजन ले नॉट एट द इक्वेटर रीजन बुझिए लगी नहीं सो टुडे क्लास will end with one problem ए क्वेश्चन टा मो मैक्सिमम टाइम में कही तो आज मुझे कही दूचे से कहले ए बियर वाज वॉकिंग इन ए डेंस फॉरेस्ट गोटे भालुटा गोटे घन घंच जंगल रे चलुला आगे कूओ थिला से कूओर डेप्थ थिला 4.9 मीटर से कूओ भितर से भालुटा सडनली पड़गला कूओ भितर से भालुटा सडनली पड़गला एवं 1 सेकेंड रे तले पड़गला तो इनिशियल वेलोसिटी केते 0 भालू चलुला आगे कूओ थे जान नथिला तो से तले पड़गला गोटे सेकेंड रे से 4.9 मीटर तल को पड़गला तो क्वेश्चन पचला व्हाट इज द कलर ऑफ द बियर भालूर रंग कौन हो तो आम जानी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0 तो एस इज इक्वल टू 1/2 तो फ्री फॉल केस आम एक्सेलरेशन के लिखे जी लिखा ना तो g इंटू टी स्क्वायर तो g इक्वल टू 2s/t स्क्वायर तो g इक्वल टू 2 इंटू एस वैल्यू केते अच्छी 4.9 t केते अच्छी 1 तो 1 रो स्क्वायर तो वैल्यू आसला 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर g रो वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मु को जगह रे कहिथिली ना एट पोल रे 9.8 होबो ना तो जेहेतु यही सिचुएशन यही केस स्मॉल जीरो वैल्यू 9.8 आसुची तार से को रीजन लाइथियो पोलर रीजन मेरु अंचल तार कलर कौन हम व्हाइट कलर कौन हम व्हाइट तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आसला कैलकुलेशन रे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को रीजन लाइथियो मेरु अंचल लाइथियो पोल रीजन रे मु कहली ना फार्मूला रेडी पोल रे केते 9.8 ना तो 9.8 आसला माने को रीजन लाइथियो पोल रीजन रे कलर कौन हम बालू रंग व्हाइट ओके तो एतिका हमर आज वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विथ चेंज इन दिस फैक्टर तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करिए यहाँ पर तो थियोरी तो भल से प्रैक्टिस कर देती बुझे लगे ना पिला ओके थैंक यू।